हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लाइट आ जा नहीं रही है, फिर भी आपके लिए मैंने सोचा ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया जाए। हल्का फुल्का टाइम लगेगा, कल लगभग मैंने बता दिया था। तो ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 2, क्लास का नाम अपना ग्लाइकोलाइसिस 02। अब तक की कहानी में हमने क्या देखा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज द मेन लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? we can say that cytoplasm of all living organism या cytosol of all living organism is the main location of glycolysis. Which scientist discovered glycolysis? Meyerhof, Embedden and Parson. There are three scientists which was discovered glycolysis. Then हमने देखा उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के अंदर उसका अदर नेम क्या था? EMP पाथवे. उसके बाद हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस इंडिपेंडेंट फ्रॉम O2 बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ये बात क्यों बोली? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस भी होता है. ठीक है, लिंक रिएक्शन भी होता है, क्रेब्स साइकिल भी होता है, ETC भी होता है. बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, बट लिंक रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी. क्रेब्स साइकिल, ETC भी नहीं होगी. लेकिन ग्लाइकोलाइसिस दोनों में हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन. देन हमने बात की जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ CO2 नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज 6 कार्बन एंड नंबर ऑफ पायरुवेट 6 कार्बन. बिकॉज 3 कार्बन का पायरुवेट उसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं. यदि प्रोडक्शन ऑफ CO2 होता तो वो कार्बन 7 या 8 चले जाते, या कम होते तो 4 या 5 हो जाते. बट देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड पायरुवेट. 6 कार्बन इन ग्लूकोज एंड 6 कार्बन इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ pyruvate. Then we will move in steps of glycolysis. First of all, glucose convert into glucose 6 phosphate by the help of consuming of ATP plus inorganic phosphate convert into ATP. This inorganic phosphate attach with 6 position of glucose with the presence of hexokinase enzyme. Then glucose 6 phosphate convert into fructose 6 phosphate. There are nothing but this is rearrangement of atom. Then glucose 6 phosphate convert into fructose 6 phosphate and fructose 6 phosphate convert into fructose 1,6 bisphosphate. By the help of consuming of 1 ATP plus inorganic phosphate convert into ATP, and this inorganic phosphate attach on first position of fructose and then formation of fructose 1,6 bisphosphate. Then fructose 1,6 bisphosphate is split into equal part. There are 2 parts of fructose 1,6 bisphosphate. First dihydroxyacetone and then glyceraldehyde 3-phosphate. Number of carbon in dihydroxyacetone is 3. Number of phosphate in dihydroxyacetone is 1. Number of carbon in glyceraldehyde 3-phosphate is 3, and number of phosphate in glyceraldehyde 3-phosphate is 1. There are no difference between dihydroxyacetone and glyceraldehyde 3-phosphate because number of carbon same, number of phosphate same. But dihydroxyacetone totally convert into glyceraldehyde 3-phosphate. Dihydroxyacetone totally convert into glyceraldehyde 3-phosphate. So we talk about glyceraldehyde 3-phosphate. There are 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. There are 2 molecule of 3 carbon of glyceraldehyde 3-phosphate. We will move next. We talk about NAD+. There are 2 hydrogen released from 1 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate and react with NAD+. There are 2 electron and 2 proton of there are 2 electron and 2 proton in 2 hydrogen atom. We write 1 electron 1 proton, 1 electron 1 proton. 1 electron react with NAD plus and charge neutral. Then NAD plus convert into NAD. Then 1 electron and 1 proton react and make and formation of 1 hydrogen. This hydrogen react with NAD and form NADH. So last NADH plus H plus. There are 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. So 2 NAD plus 4H
formation of 2 NADH plus 2H plus. There are 4 hydrogen called redox equivalent. So number of redox equivalent 4H, but different molecule number of redox equivalent 2 and 2. Then H3PO4 attach with one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate and an additional phosphate attach on first position of glyceraldehyde 3-phosphate. Then glyceraldehyde 3-phosphate convert into phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid, because aldehyde easily convert into acid with the help of H3PO4. So one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate convert into phosphoglyceric acid and one phosphate attach on first position of glyceraldehyde, so we called 1,3-bis phosphoglyceric acid. Second molecule 1,3-bis phosphate 1,3-bis phosphoglyceric acid. So two molecule of 1,3-bis phosphoglyceric acid. Now इसके आगे अब हम देखते हैं, अब तक का हमने देख लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। दूसरा मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इधर भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, बोलो नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ फॉस्फेट 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ फॉस्फेट 1, number of molecule 1, number of carbon 3 but number of molecule 2, so total number of carbon 6, number of phosphate 1 plus 1 is equal to 2 phosphate। अब देखिए कौन आएगा, H3PO4 H3PO4 H3PO4। पहली बात तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ये बात लिखो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3 पे तो फॉस्फेट पहले ही था, 3 पे तो फॉस्फेट पहले ही था, लेकिन एडिशनल H3PO4 की हेल्प से एक नंबर पोजीशन पे एक और फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट। अब दो है तो बेस, दो है तो बेस, नाम क्या हो गया, 1,3-bis phosphoglyceric acid, 1,3-bis phosphoglyceric acid, number of carbon 3, number of phosphate 2, number of molecule 1, number of carbon 3, number of phosphate 2, number of molecule 1, क्या बन जाएगा, 2 1 3-bis phosphoglyceric
नंबर ऑफ फॉस्फेट 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ बनेगा एक आपका एटीपी। क्या बनेगा? एटीपी। एडीपी। अब बोलो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा? स्टेप नंबर 1 याद करो। ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे एटीपी जो फॉस्फेट है वो कहां से जुड़ा था? एटीपी से छीन लिया गया था एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी टूटा था एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। वो टूटते ही वो फॉस्फेट 6 पोजीशन पे जुड़ा था ग्लूकोज की पे। फिर आ जाओ 3rd पोजीशन पे। जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा था तब वापस एटीपी कंज्यूम हुई थी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटी थी और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके अटैच हो गया था 1st पोजीशन पे। अब बारी है बदला लेने की। अब वापस एटीपी उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बुला रहा है। यहाँ से 1st पोजीशन से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया यहाँ। 1st पोजीशन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया यहाँ और बना देगा एटीपी। एटीपी। बताओ 1st पोजीशन से क्या छिन गया? फॉस्फेट। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आ जाओ इधर दूसरा मॉलिक्यूल। 1st पोजीशन से क्या छीनोगे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा एटीपी। 1st पोजीशन से छीन लोगे तो क्या नाम रह जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आ जाओ इधर। कितने मॉलिक्यूल? 2। 1 2। कितने एडीपी? 2। कितने एडीपी? मार्कर चेंज करना पड़ेगा यार। मार्कर नहीं चल रहा है। 1 मिनट रुकिए। कितने एडीपी? 2 एडीपी। कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? 2। कितने एटीपी? 2 एटीपी। कितने एटीपी? 2 एटीपी। कितने मॉलिक्यूल? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले एक बार, कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने फॉस्फेट? 1 फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने फॉस्फेट? 1 फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने मॉलिक्यूल? 2। टोटल 6। 2 फॉस्फेट। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। कोई खास बात नहीं है क्योंकि सिर्फ आइसोमरेज हो रहा है, पोजीशन बदल रही है, बाकी सेम टू सेम चीज रहेगी। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 molecule of 2-phosphoglyceric acid। 2-phosphoglyceric acid। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है? पोजीशन। क्या चेंज हो रही है? पोजीशन। ठीक है, एक बार नंबर डाल देते हैं। कल अपन ने कितनी 5 या 6 स्टेप पढ़ ली थी? ये है स्टेप 6,
7, 8 और 9। यहाँ देखिए 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब कन्वर्ट होगा इसमें फॉस्फोइनोल फॉस्फोपाइरुवेट। अब ये पाइरुवेट में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट किसमें होगा, पाइरुवेट। किसमें बदल जाएगा, पाइरुवेट। किसमें बदल जाएंगे, पाइरुवेट। पाइरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन 3। यहां नंबर ऑफ कार्बन 3। फॉस्फेट 1। नंबर ऑफ कार्बन 3। फॉस्फेट 1। नंबर ऑफ कार्बन 3। मॉलिक्यूल 2। टोटल कार्बन 6। फॉस्फेट 2। कहानी का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टेप में वापस एटीपी को, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी बना के छीन लिया जाएगा। देखिए मार्कर टंके हैं, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी। जो एक फॉस्फेट नजर आ रहा था पोजीशन नंबर 2 पे, अब वो हट चुका है, उसको छीन लिया गया है और क्या बना दी गई है, एटीपी। चलते हैं इस साइड। दो नंबर पे क्या जुड़ रहा है, फॉस्फेट। कौन छीन लेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू एटीपी, और 2 नंबर से फॉस्फेट हट जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुवेट। पाइरुवेट, ठीक है, पाइरुवेट। और यही सेम पोजीशन यहाँ देखने को मिलेगी। या आप डायरेक्ट पाइरुवेट में कन्वर्ट ना करके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में एक बार कर दो, पैप बोलते हैं इसे, या डायरेक्ट इसको अपन लिख सकते हैं, वो स्टेप का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 2 मोलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन 3। नंबर ऑफ कार्बन टोटल 6। जो हमने शुरू में देखा था ग्लूकोज के 6 कार्बन जिससे पाइरुवेट बन रहा था, 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के, अब वो पोजीशन आ चुकी है। नंबर ऑफ कार्बन 3। नंबर ऑफ फॉस्फेट 0। नंबर ऑफ कार्बन 3। नंबर ऑफ फॉस्फेट 0। नंबर ऑफ कार्बन 3। नंबर ऑफ फॉस्फेट 0 0 फॉस्फेट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही हमारा ग्लाइकोलाइसिस है। एंजाइम के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जो एंजाइम काम में आता है उसे हम बोलते हैं काइनेज। क्या बोलेंगे, काइनेज। यहाँ म्यूटेज, यहाँ इनोलेस, यहाँ इनोलेस, यहाँ फॉस्फोपाइरुवेट काइनेज, फॉस्फोपाइरुवेट काइनेज। तो वापस देखते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसका एक मॉलिक्यूल बनके 2 मॉलिक्यूल, H3PO4 का एडिशन होता है, एक और एडिशनल फॉस्फेट नंबर 1 पोजीशन पे लग जाता है। दोनों यौगिक, दोनों कंपोनेंट दोनों कंपाउंड के अंदर लगेगा और 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में यहाँ से इस 1 नंबर वाले पोजीशन के फॉस्फेट को छीन लिया जाता है और अब ये सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में। सेम प्रोसेस ही रहेगी। फिर इसका आइसोमराइजेशन और लास्ट में एक और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ते हैं, इस 2 नंबर पोजीशन के फॉस्फेट को छीनते हैं और पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक
मेरे अकॉर्डिंग कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट स्टेप्स हमारी होती है। नाउ दो चार बातों की हम यहाँ बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। लाइट भी आ चुकी है आपके लिए, तो हम देख लेते हैं एक बार दो चार जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मैं हटा रहा हूँ, उस मॉलिक्यूल की हेल्प से हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल ATP कंज्यूम, टोटल कितनी ATP कंज्यूम, टोटल कितनी ATP कंज्यूम, 2 ATP कंज्यूम। स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप थर्ड। नेक्स्ट डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन, डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन। कितने ATP डायरेक्ट बनेगी? पहली बात तो डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या मतलब है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट का मतलब ऐसी एटीपी जो सबस्ट्रेट से बन जाए उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इससे पहले फॉस्फोराइलेशन का मतलब देखिए, नंबर ऑफ एडीपी ऑन इन ऑर्गेनिक, नंबर ऑफ एडीपी विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ आ रही है ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड सबस्ट्रेट है। इसकी वजह से यहाँ क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। इसकी वजह से क्या बन रहा है? एटीपी। डायरेक्ट एटीपी भी बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी भी बोल सकते हैं। अब फॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हैं? नंबर ऑफ एटीपी विद आईपी। यहाँ एटीपी के साथ आईपी दिख रहा है, दिख रहा है, इसलिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट से बन रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। डायरेक्ट एटीपी भी इसको बोलते हैं। कितने बन रहे हैं? 2 यहाँ और यहाँ पर नहीं लिखा नहीं, एक बार में लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख देते हैं अपन 2 ATP प्लस IP 2 ATP। टोटल कितने? 2 वहाँ 2 वहाँ, 2 प्लस 2 4 ATP। कितने एटीपी बन रहे हैं? 4 एटीपी। किससे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। अब देखिए इन डायरेक्ट एटीपी या फिर एटीपी कम्स फ्रॉम NADH। एक स्टेप देखी थी अपन ने जिसके अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन निकल रहे थे, NAD+ के साथ रिएक्ट कर रहे थे। कितने रेडॉक्स इक्विवेलेंट? 4। एक में एक NADH, एक में एक NADH, टोटल कितने NADH? 2 NADH प्लस H प्लस एक NADH से 3 ATP बनती है। 2 NADH से 3 × 2 6 ATP बनती है। तो डायरेक्ट ATP कितनी? 4। कितनी? 4। इनडायरेक्ट ATP कितनी? 6। तो टोटल ATP कितनी?
टोटल ATP 4 + 6 10 ATP। कितनी ATP? 10। कंज्यूम कितनी? 2। कंज्यूम 2 ATP। तो नेट ATP गेन 10 - 2 = 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितनी नेट ATP गेन होती है? 8 ATP गेन होती है। थोड़ी सी समस्या और बाकी सुलझा देता हूँ लास्ट, एरोबिक और अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। देखिए यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारी बात मैंने आपको बता दी। एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद कीजिए पहला लेक्चर, उसके अंदर मैंने बताया था जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस चलता है, लिंक रिएक्शन चलती है, क्रेब्स साइकिल चलता है, ETS या ETC चलता है। तो अब देखिए ATP की बात कर रहे हैं, एरोबिक में कितनी? डायरेक्ट 4 ATP। कितनी ATP डायरेक्ट? 4। दिख रही है डायरेक्ट 4। अब देखिए इनडायरेक्ट ATP क्या एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इनडायरेक्ट ATP बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि इनडायरेक्ट ATP बनती है NADH से, और NADH ETS के अंदर चला जाता है। जैसे ही ETS के अंदर जाएगा ये ATP को प्रोड्यूस कर देगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर यदि ETS हो रहा है तो जाहिर सी बात है NADH के द्वारा इनडायरेक्ट ATP भी बनेगी। तो कितनी इनडायरेक्ट कितनी? 6 ATP बनेगी। टोटल 10 ATP बनेगी। नुकसान कितना हो गया? टोटल ATP गेन 8 ATP। यहाँ तक एरोबिक में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अनएरोबिक। डायरेक्ट ATP 4 बनेगी, क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ATP क्या अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनेगी? पहला लेक्चर जब आपको याद हो तो मैंने कहा था ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक। वो बात सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। बट क्या लिंक रिएक्शन, क्या ETS, क्या क्रेब्स साइकिल कभी भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर चलता है क्या? अरे नहीं चलता। जब ETS ETC चलेगा ही नहीं तो NADH कहाँ से NADH ETC के अंदर चला जाएगा और कहाँ से ATP बना देगा? सो ETS अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एब्सेंट होगा तो कभी भी इसमें इनडायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ indirect ATP. So total ATP 4 minus 2 is equal to 2 ATP। ये -2 क्योंकि बार बार बताने की जरूरत है नहीं। शुरू की पहली और तीसरी स्टेप में ATP कंज्यूम हुई थी, इसलिए यहाँ मैंने 2 ATP माइनस की है जो यहाँ भी दी थी। टोटल ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन 8, टोटल ATP इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन 2। इनडायरेक्ट एरोबिक में बनेगी, नॉन एरोबिक या अनएरोबिक में नहीं बनेगी, क्योंकि अनएरोबिक में ETS चलता नहीं और ETS चलता नहीं तो जाहिर सी बात है यहाँ ATP नहीं बनेगी। लास्ट बात जो डायरेक्ट ATP है वो 7th और 10th स्टेप में बनती है। डायरेक्ट ATP 7th and 10th स्टेप। लेक्चर को करते हैं खत्म। ग्लाइकोलाइसिस
की जनरल बातें, उसके स्टेप्स और एटीपी के बारे में लिखा होगा। बैलेंस शीट, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।